A very good afternoon to all of you student. Welcome to online classes of your school St. HPKP. Myself Subham Singh, I am your physics teacher. Today I am going to rest part of the previous video and which I had told you in previous. I think I told you about the MKS system and CGS system and FPS system. I told you the units which are measured in taken in the world, and in final I told you the SI unit are accepted all over the world after that. And now types of SI units. How many types of SI units are there? There are two types of SI units are there. SI units are two types of there: fundamental units and derived units. As the name of the derived, you can say or you can understand very well what is the mean of derived. Derived means क्या होता है? निकाला गया, यानी डिराइव्ड यूनिट जो होती हैं वो यहाँ यानी फंडामेंटल यूनिट से ली जाती हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट से निकाली जाती हैं. सो स्टूडेंट, टेकिंग स्टार्ट ऑफ द लेसन, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि हमें मतलब कि ये टोटल 7 यूनिट्स पता हैं. These are only 7 units, fundamental units, and we have to learn all these units, and the derived units came from the fundamental units. These fundamental units, example, length. First, these are quantity, these are units, and these are the symbols. Length, it's mean length always measure in a meter, and meter is represented small m. Remember that the small and capital letter. And then mass is always measured in kilogram, and it is written in symbolic written is kg. Symbolic representation is a kg. And then time is measured in a second, and it is symbolic representation is s. And electric current is symbolic measured in ampere, and symbolic representation is capital A. Remember that the capital A. Temperature's SI unit is not a Celsius or not a Fahrenheit. We already know that the two are units, Celsius and Fahrenheit. Okay, but these are not the SI units. The Celsius and Fahrenheit not a SI unit. And SI unit of a temperature is a kinetic temperature, or you can say that the temperature SI unit of a temperature is a Kelvin, capital K representation. And the luminous intensity is represented at candela. Unit is candela and represented at CD, small c and small d. And amount of substance is mole. This is used in a chemistry. Mole, amount of when we find any amount of the substance, we use the unit mole, and it's represented as MOL. ओके स्टूडेंट, नाउ आई टेल इन हिंदी. लेंथ जो है बेटा वो मीटर में मेज़र की जाती है और उसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास जो है वो किलोग्राम में और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. के कैपिटल होता है और जी स्मॉल होता है. और टाइम जो होता है वो उसकी यूनिट है सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से. और टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से. लुमिनस इंटेंसिटी की वैल्यू है यूनिट है कैंडेला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट जो है वो है मोल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से. और अब आपको बताएंगे डिराइव्ड यूनिट क्या है. डिराइव्ड यूनिट अभी मैंने बताया, डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो इसी से निकल के आती है, जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, न्यूटन, एनर्जी, प्रेशर. अब जैसे आपको पता होगा बेटा, जैसे स्पीड को ले लेते हैं, ठीक है. स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. अब डिस्टेंस की यूनिट अगर आप मीटर में रख रहे हो, इमेजिन करो मीटर में रख रहे हो, वैसे किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस की यूनिट मीटर में रख रहे हो और टाइम सेकंड में रख रहे हो, तो इसकी यूनिट क्या हो गई जाके? मीटर पर सेकेंड. यानी ये जो यूनिट है कहाँ से निकली? यहाँ से. लेंथ के लिए हमने इस्तेमाल किया मीटर, और टाइम के लिए हमने इस्तेमाल किया सेकेंड, यानी इसकी यूनिट जो है स्पीड की निकल के आई मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब इसका जो बेटा ये अभी मैं आगे बताऊंगा, एक रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैं आगे बताऊंगा. जैसे आगे अब देखिए, जैसे फोर्स F बराबर क्या होता है सर? F बराबर M इंटू ए होता है, पता है ना आपको, M इंटू ए.
तो उसकी यूनिट कहाँ से निकल के आती है सर? वो भी न्यूटन जो निकल के आती है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो वो भी वहीं से निकल के आती है, ठीक है। ऐसे डेंसिटी, ऐसे प्रेशर की यूनिट पास्कल है, ठीक है। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। ये सारी यूनिट जो हैं ये डिराइव्ड यूनिट है बेटा, इन्हीं से निकल के आई है। मैंने अभी आपको स्पीड से समझा दिया ना कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी अब देखिए इसको जो है ये फंडामेंटल यूनिट थी और ये डिराइव्ड यूनिट है। उसके बाद है दूसरी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट जो हैं वो बेटा, अब देखो यहाँ अभी आपसे पूछा जाए कि ये वाई आर दीज यूनिट्स आर रिटन अलॉन्ग विद नेम द सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों हैं और ये डिराइव्ड यूनिट क्यों हैं, ये फंडामेंटल यूनिट क्या? अभी मैंने आपको बताया कि आपको केवल यही 7 यूनिट मेन पढ़नी है, और ये जो बाकी यूनिट होती हैं इससे बहुत सारी निकलेंगी बेटा। ये अभी आपको फॉर्मूले द्वारा निकाली जाएंगी, फॉर्मूला जो होगा उसी से यूनिट निकाली होंगी, लेकिन जो मेन यूनिट होगी वो फंडामेंटल यूनिट है। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट कहाँ से आ गई? सप्लीमेंट्री यूनिट जो हैं वो इसमें 2 क्यों ली गई हैं? देखिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, इसे ध्यान रखिएगा। डिग्री जो आप अभी तक याद करके आओ वो नहीं होती है, इसकी होती है रेडियन, और इसकी स्टारेडियन होती है, स्टारेडियन। इसको लिखते हैं RED से और इसको लिखते हैं SR से, ठीक है। और अब आपको ये बता दें कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट आई कैसे है। देखिए इसकी क्योंकि डायमेंशन लेस होती है, मतलब इसमें कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं, कोई भी डायमेंशंस दी नहीं गई होती, इस वजह से ये डायमेंशन लेस होती है। जैसे कि अभी आप इसको समझने के लिए देखिए, ये लेंथ जो है उसको कैपिटल L से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, यानी जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है उसका डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। बाकी फंडामेंटल यूनिट का डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि लेंथ को हम कैपिटल L से लिखते हैं, मास को कैपिटल M से, T को आप कैपिटल T से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आप कैपिटल A से लिख सकते हैं। इसी तरीके देखिए अभी मैं आपको बताऊं, ये भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि जैसे स्पीड का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि स्पीड इक्वल टू होता है D/T, यानी D मतलब क्या है? मीटर, और ये होता है सेकेंड। तो अब इसको देखिए एक बार देखिए, मीटर को आप किससे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल L से, और टाइम को T से कैपिटल, ठीक है। और ये जो T नीचे है बेटा, तो ये क्या ऊपर आ जाएगा? तो ये हो जाएगा LT-1, यानी पावर इसकी यहाँ पे T क्या है? 1 है, तो ये ऊपर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? LT-1, यानी LT⁻⁻1 ये स्पीड का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये अभी आपको ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे इसी क्लास में, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी आपको इतना समझना है कि इसका जो होता है फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं उसका क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। फंडामेंटल यूनिट्स का डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं इसका डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या क्या आता है बेटा। तो देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपको पहले बताया गया प्लेन एंगल क्या होता है? देखिए मान लीजिए प्लेन एंगल आप ये सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल से आपने एक 90 डिग्री का एंगल कट कर लिया बेटा, तो 90 डिग्री एंगल कट किया, तो ये देखिए ये क्या है? ये इसकी रेडियस है। यहाँ मान लीजिए सर्किल था, सर्किल से इसके जो ये इसकी जो आउटर सरफेस है उस पर टच करेगा, तो ये क्या होगा? ये इसकी रेडियस है, और ये यहाँ तक इसकी, ये देखिए ये क्या है? ये इसका है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, यानी आपने जो आर्क मारा है, कट किया, उसको निकाला, वो लेंथ ऑफ आर्क है, और ये थीटा है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन L/R। इस मीन लेंथ अपॉन इस रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन इट्स रेडियस, ध्यान रखिएगा। यानी जो ये थीटा, यानी जो आपने प्लेन एंगल है वो आपने किसी सर्किल से निकाला, उसमें एक जो आपने आर्क मारा वो लेंथ ऑफ आर्क है, और ये एंगल जो है वो थीटा है। इसकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? लेंथ अपॉन आर। इसको आप L इज इक्वल टू, यानी लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू R इंटू थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे? अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R इंटू थीटा, और L यहाँ आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू R। अब देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल बेटा, ये सॉलिड एंगल जो होता है सर्किल से, दीज आर कट फ्रॉम द सॉलिड सर्किल, दीज आर कट फ्रॉम द
सर्किल और यू कैन सेट द हॉलो सर्किल, मतलब जैसे कि बीच से खाली हो ऐसा सर्किल से निकाला गया हो एंगल, वो सॉलिड प्लेन एंगल होता है। और ये जैसे कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे मैं एक तरबूज रखा हुआ है, उससे मैंने ये देखिए कॉनिकल शेप कट करके निकाल लिया, कॉनिकल शेप कट के निकाल लिया। तो अब देखिए इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए जो ये मैंने कॉनिकल पार्ट निकाला है, ये देखिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये एस है, यानी इसकी क्या है, एरिया है, और ये जो ओमेगा है, और ये क्या है, रेडियस, इसमें भी रेडियस, यहाँ सर्किल के सेंटर से इसके उसमें तो जो आएगी वो रेडियस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे है रेडियन में अगर आपको चेंज करना है, अभी आगे ये भी सवाल दिए जाएंगे कि अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री। मतलब आपको कोई भी एंगल दिया गया है बेटा, वो 60 डिग्री में दिया गया है, और आपसे कहा जाए कि यू हैव टू चेंज द रेडियन इंटू डिग्री इंटू रेडियन, तो आप इसको पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको कट कर लीजिए, 60 इंटू 3 बार चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 होती है या फिर 22.7 होती है, तो वो वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी रेडियन में ये क्या होगा, पाई अपॉन 3 रेडियन, यानी 60 डिग्री अगर रेडियन में चेंज हुआ तो पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। एंड नेक्स्ट अब मान लीजिए देखिए डिग्री ऑफ आर्क, मिनट ऑफ आर्क और सेकेंड ऑफ आर्क। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सवाल पढ़े होंगे कि कोई भी एंगल बनता है उसमें लिखा होता है डिग्री, ठीक है, जैसे 2 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, उसके ऊपर कभी कभी जैसे लिखा होता है 2, ये जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक एरो, एक डॉट बना है, इसका मतलब है ये मिनट है, 2 मिनट। उसके बाद ये देखिए क्या लिखा हुआ है 4 के ऊपर 2 लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये 4 सेकेंड है। मतलब मिनट और सेकेंड में भी होते हैं, और लेकिन चेंजमेंट ये मिनट वो घड़ी वाले और टाइम वाले मिनट नहीं है, ये डिग्री के मिनट है, डिग्री मिनट और डिग्री सेकेंड। तो अब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो देखिए मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यू हैव टू चेंज द 2 सेकेंड इंटू रेडियन में चेंज करना है। सर जी आपको 2 सेकेंड को रेडियन में चेंज करना है, तो आपको देखिए 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है, ठीक है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज हो गया सर, किस में चेंज हो गया सर, ये चेंज हो गया मिनट में, किस में चेंज हो गया, मिनट में। और फिर 1/60 से फिर डिवाइड किया। देखिए पहले आपने ये देखिए, क्योंकि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है ना, तो 2 सेकेंड को आपने डिवाइड किया 60 से, तो ये चेंज हो गया मिनट में। फिर 1/60 को 1/60 से डिवाइड किया तो ये मिनट में, किस में, डिग्री में चेंज हो गया। और अभी आपने डिग्री का फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1/π/80 इंटू डिग्री, तो अब देखिए π/80 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब ये डिग्री में इतना चेंज हो गया, इसमें π/80 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। यू हैव टू चेंज द रेडियन। अब देखिए बेटा एंगल रिप्रेजेंटेशन इन प्लस एंड माइनस, हाउ टू वी मेजर द एंगल इन प्लस एंड माइनस। देखिए दो, जैसे ये आपको पता है कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे अगर जैसे हम ये इधर की ओर ऐसे नापेंगे, इधर की ओर जैसे एरो बना रहा है, मेरी फिंगर देखिए आप, ऐसे अगर नापूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इधर चलूँगा तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंगल का तो वो प्लस में होता है, और क्लॉकवाइज में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो माइनस का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक एंगल बनाया मैंने कि एंगल को अगर ऐसे देखें तो ये 120 डिग्री है, लेकिन अगर इसको उल्टा देखेंगे तो ये 360 से 120 माइनस कर दीजिए सर, 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 240 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फिजिक्स में तो ये सर माइनस में होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने रिप्रेजेंट किया है, एंटी क्लॉकवाइज उसको मैंने काउंट किया है, जोड़ा है। तो स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ कि आपको इतना ही बता दूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन देखता हूँ सर अभी बहुत भी है सर। और एक बार मैं फिर से पूरा बता दूँ, देखिए सर फिर से रिवीजन करा दूँ। मैं आपको ये इसकी पिक भी भेज दूँगा जिससे कि आप आसानी से देख के समझ सकें और नोट कर सकें, नोट्स बना सकें। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है मैंने बताया, एसआई यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उसमें 7 यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट मैंने बताया, डिराइव्ड यूनिट जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट से जो निकल के आती हैं वो डिराइव्ड यूनिट होती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड यूनिट के, और ये 7 एग्जांपल्स हैं हमारे फंडामेंटल यूनिट्स के। हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनेशन
इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और फिर सप्लीमेंट्री यूनिट वो होती हैं जिनमें क्या कहते हैं डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वो सप्लीमेंट्री हमारी होती हैं, जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनका यूनिट होती है रेडियन, इसकी होती है स्टार रेडियन, और ये होता है RED से लिखते हैं, इसको SR से लिखते हैं। डिराइव्ड यूनिट जो फॉर्मूले से निकल के आती हैं जिसकी यूनिट, वो डिराइव्ड यूनिट होती हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिट आप पढ़ोगे जो फॉर्मूले से निकल के आएंगी, वो आपकी डिराइव्ड यूनिट होंगी। उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए अब सॉलिड एंगल मैंने बताया क्या होता है। सॉलिड एंगल मान लीजिए एक आपने ऐसा सॉलिड सरफेस लिया, उससे अगर आप कोनिकल शेप कोई भी चीज़ निकालते हैं तो उसका जो ये S होगा वो एरिया होगा, जो कोन वाला ऊपर वाला चीज़ होगी वो एरिया होगी। उसके बाद बाकी जो रेडियस होगी तो इसका ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इसको S/R² होता है। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 इंटू डिग्री आएगा, ठीक है। इसी तरीके प्लेन फिगर क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, उसमें जैसे नॉर्मल सर्किल है उससे आपने कोई भी कट किया तो वो प्लेन एंगल है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और ये क्या है, रेडियस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ = L/R। इसी तरीके मैंने बताया था कि इसको रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री 60 डिग्री दिया है, तो आप यहाँ पे π/180 इंटू डिग्री कर सकते हैं, और फिर इसको क्रॉस करके सॉल्व करके आप इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, मैं भी आपको ये पिक भी भेज दूँगा जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है।